लेक्चर 15 स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे पीडीएफ में हम पढ़ेंगे आज इंडेक्स नंबर्स के बारे में। अभी तक हम स्क्रीनशॉट पढ़ रही थी। इंडेक्स नंबर्स में आपने याद रखना द स्टैटिस्टिकल व्हाट इज इंडेक्स नंबर इसके द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंजेस इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम location and other characteristics is called index number। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडेक्स नंबर इसके द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंजेस इन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जियोग्राफी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन है हु कैलकुलेटेड फर्स्ट इंडेक्स नंबर्स इसका सुबह इटालियन स्टैटिस्टिशियन रोनाल्डो कार्ली। सवाल इस तरह बनता है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स इसका सही जवाब है रोनाल्डो कार्ली। ही कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ प्राइस फॉर द ग्रेन वाइन एंड ऑयल। क्वेश्चन है द इंडेक्स नंबर्स इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। बहुत ही द इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। Characteristics of index numbers. The index numbers are expressed in percentage form। तो आपने याद रखना इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडेक्स पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन इसके परसेंटेज फॉर्म। उसके बाद है द रिलेटिव और कंपेरेटिव मेजरमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। तो आपने याद रखना पहले इंडेक्स नंबर किसको हम कहते हैं? द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंजेस इन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जियोग्राफी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। First time, the index numbers were calculated by Italian statistician Rinaldo Carli. He calculated the ratio of price for grain, wine, and oil. The index numbers is also known as economic barometer. The index numbers is also known as economic barometer. Characteristics of index number. Index numbers are expressed in percentage form. पहला characteristic क्या है? Index numbers are expressed in percentage form. दूसरा है Index numbers give the relative or comparative measurement of a group of commodities. The index numbers give the relative or comparative measurement of a group of commodities. पहला क्या है? Index numbers are expressed in percentage form. दूसरा है Index numbers give relative or comparative measurement of a group of commodities. तीसरा है The index numbers represent the specialized averages. The index numbers represents the specialized averages. For example, consumer price index, cost of living index, industrial production index। तो आपने याद रखना पहले आपने याद रखना व्हाट इज इंडेक्स नंबर इसके बाद द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंजेस इन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जियोग्राफी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। द इंडेक्स नंबर्स वर फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय इटालियन statistician Rinaldo Carli. He calculated the ratio of price for the grain, wine, and oil. The index numbers are also known as economic barometer. Characteristics of index numbers पहला क्या है? Index numbers are expressed in इसके percentage form। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The index numbers are expressed in इसके percentage form. The index numbers give relative or comparative measurement of a group of commodities। तो आपने फैक्ट याद रखना The index numbers give relative or comparative measurement of a group of commodities। तीसरा है The index numbers represent the specialized averages. The index numbers represents the specialized averages. Give the examples of index numbers इसका जवाब है consumer price index, cost of living index, industrial production index। उसके बाद हम बात करेंगे Problems in construction of index numbers। Problems in construction of index numbers। पहला क्या है? Purpose of index number should be predefined। ठीक है ना, ये आपने फैक्ट याद रखना। Purpose of index number should be predefined. Every index number has its specific use। ठीक है ना, तो आपने याद रखना पहले Problems in construction of index numbers। तो आपने याद रखना पहले The purpose of an index number should be predefined। तो आपने याद रखना The purpose of an index number should be predefined that every index number has its specific use। दूसरा है Selection of base year। Selection of base year इसमें क्या होना चाहिए? Base year should not be too near nor too far। तो आपने याद रखना while constructing तो आपने याद रखना पहले आपने याद रखूंगा While constructing the index numbers, the purpose of index number should be predefined that every index number has its specific value। दूसरा क्या है? Selection of base year इसमें आपने याद रखना While constructing the index numbers तो आपने याद रखना While constructing the index numbers, the base year should be not too far nor too near। तो आपने याद रखना the base तो आपने While constructing the index numbers, the base year should not be too near nor too far। दूसरा है the index numbers तो आपने the index numbers should be कैलेमिटी फ्री। तो आपने उसमें द इंडेक्स नंबर्स शुड बी कैलेमिटी फ्री। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना द इंडेक्स नंबर्स शुड बी कैलेमिटी फ्री। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज तीसरा जो है वो है चूजिंग द सोर्स ऑफ डाटा। चूजिंग द सोर्स ऑफ डाटा। उसके बाद है चॉइस ऑफ एवरेज। उसके बाद क्या है? चॉइस ऑफ एवरेज। उसके बाद है चॉइस ऑफ कैलकुलेशन मेथड। चॉइस ऑफ कैलकुलेशन मेथड। यह है प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स।
अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में। द इंडेक्स नंबर्स गिव्स अप्रोप्रिएट वैल्यूज, ठीक है ना। तो आपने इसमें पहला लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर्स का, द इंडेक्स नंबर्स गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसके बाद द इंडेक्स नंबर्स गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। दूसरा है द इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। तो आपने पहले याद रखना लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन इंडेक्स नंबर्स का वो है इंडेक्स नंबर्स गिव अप्रोप्रिएट वैल्यूज। पहला क्या है इंडेक्स नंबर्स गिव्स, तो आपने पहला याद रखना लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में पहला क्या है इंडेक्स नंबर्स गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। पहला क्या है इंडेक्स नंबर्स गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। दूसरा है द इंडेक्स नंबर्स इज बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। दूसरा क्या है द इंडेक्स नंबर्स इज बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। दूसरा है इन इंडेक्स नंबर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आपने इसमें इन इंडेक्स नंबर्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। पहला लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर्स का, वो है इंडेक्स नंबर्स गिव अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो आपने इसमें पहला लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स वो है द इंडेक्स नंबर्स गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। दूसरा है द इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। दूसरा क्या है द इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। तीसरा है इन इंडेक्स नंबर्स, तो आपने याद रखना द इंडेक्स नंबर्स गिव्स क्वालिटी ऑफ, तो आपने याद रखना पहला लिमिटेशन क्या है इंडेक्स नंबर्स का, वो है इंडेक्स नंबर्स गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। पहला क्या है इंडेक्स नंबर्स गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। दूसरा है द इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। द इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स ओनली। तीसरा है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंडेक्स नंबर्स। तो आपने याद रखना इन इंडेक्स नंबर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद क्या है फॉर एवरी पर्पस डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो आपने याद रखना फॉर एवरी पर्पस डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो आपने याद रखना पहला क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा है क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर, तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना पहले टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स में क्वेश्चन मार्क्स व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इसको प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। पहला है प्राइस, उसके बाद है क्वांटिटी, उसके बाद है वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इसको सिर्फ है प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन प्राइस बिटवीन बेस ईयर एंड द करंट ईयर। तो आपने याद रखना फैक्ट इसमें सवाल बनता है विच इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज इन प्राइस बिटवीन बेस ईयर एंड द करंट ईयर, इसको प्राइस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन प्राइस बिटवीन बेस ईयर एंड करंट ईयर, इसको प्राइस इंडेक्स। दैट्स होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। द प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज इन प्राइस बिटवीन बेस ईयर एंड द करंट ईयर। द price index number can be wholesale price index number or retail price index number. उसके बाद है quantity index numbers. The quantity index numbers shows the average changes in quantities. ये आपने याद रखना है the quantity index numbers shows the average changes in quantities produced, consumed or sold. तो आपने याद रखना है what are quantity index numbers, इसको सिर्फ the quantity index numbers. What are quantity index numbers? The quantity index numbers shows the average changes in quantities produced, consumed and sold. Give the examples of quantity index numbers. इसके imports, exports, production in industries, etc. पहले आपने याद रखा what is quantity index number? इसके the quantity index number shows the average changes in quantities. तो आपने पहले याद रखूंगा the quantity index numbers shows average changes in quantities produced, consumed or sold. तो आपने पहले याद रखूंगा इसमें the quantity, what is quantity index number, इसके बाद the quantity index number shows the average characteristics. तो आपने पहले याद रखूंगा quantity index numbers में the quantity index numbers shows average changes in quantities. तो आपने रखा what is quantity index number, इसके बाद the quantity index number shows the average changes in quantities produced, consumed or sold. For example, imports, exports, production in industries, etc. वैल्यू इंडेक्स नंबर, द वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी। तो आपने देखा वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी। तो आपने फैक्ट याद रखना इसमें वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी। तो आपने याद रखना व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर, द वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी। तो आपने याद रखना इसमें मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। पहला क्या है
सैंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। पहला क्या है, सैंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद है सैंपल इंडेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं सैंपल एग्रीगेटिव मेथड और उसके बाद सैंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। वेटेड इंडेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव्स। तो पहला हम बात करते हैं सैंपल इंडेक्स नंबर्स के बारे में। इन सैंपल इंडेक्स नंबर्स ईच आइटम हैज गॉट द सेम वेट, देयरफॉर नो इंडिविजुअल वेट्स आर असाइन्ड। ठीक है ना, तो आपने सुना इन सैंपल इंडेक्स नंबर्स ईच आइटम हैज गॉट द सेम वेट, देयरफॉर नो इंडिविजुअल वेट्स आर असाइन्ड। We do have sample aggregative method and sample average of price relatives. Sample aggregative method का procedure क्या है, add all the current year price of various commodities। दूसरा है add all the base year price and various commodities। P01 is equal to summation of P1 divided by P0 into 100। ठीक है ना, यह है फॉर्मूला किसकी, ये आपने याद रखो इसमें, ये किसकी है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है सैंपल एग्रीगेटिव मेथड की। ठीक है ना, क्या है, P01 is equal to summation of P1 divided by summation of P0 into 100, where P01 is equal to index number of current year, summation of P1 is equal to total sum of current year price, summation of P0 total sum of base year prices। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसकी फार्मूला Q0, क्वांटिटी इंडेक्स की फार्मूला क्या है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, वो है Q01 is equal to summation of Q1 divided by summation of Q0 into 100, where Q01 is equal to quantity index number of current year, summation of Q1 sum total of current year quantities, summation of Q0 sum total of base year quantities। ये आपने याद रखना का। उसके बाद क्या है, सैंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। पहला क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ द करंट ईयर, P1 divided by P0 into 100, obtain the sum of relative prices, that is summation of P1 divided by P0 into 100, divide the sum relative prices by total, that is P01 is equal to summation of P1। ये आप छोड़ो। तो उसके बाद वैल्यू इंडेक्स नंबर्स के लिए आपने याद रखना, इसमें वैल्यू इंडेक्स की फार्मूला V01 is equal to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100। वेटेड इंडेक्स नंबर्स, तो आपने देखा वेटेड इंडेक्स नंबर्स द अप्रोप्रिएट, तो आपने व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स, इसका इन वेटेड इंडेक्स नंबर्स अप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन्ड टू वेरियस कमोडिटीज टू शो देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो आपने देखा व्हाट आर वेटेड इंडेक्स नंबर्स, इसका द वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच अप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन्ड टू वेरियस कमोडिटीज टू शो देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, there are a lot of methods to calculate weighted index numbers like Lesper's method, Fisher's method, Bowler's method, etc। ठीक है ना, पहला क्या है, Lesper's method, it is used to compare the expenditure of basket of commodities of base year and the current year। सवाल इस तरह से बनता है, what is the use of Lesper's method, what is the use of Lesper's method, इसका सुबह the Lesper's method is used to compare the expenditure of basket of commodities of base year with the current year। क्वेश्चन आपने फैक्ट याद रखूंगा, व्हाट इज लेस्पियर्स मेथड, इसका सुबह द लेस्पियर्स मेथड इज यूज्ड, सॉल्व करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ लेस्पियर्स मेथड, इसका सुबह द लेस्पियर्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखा, लेस्पियर्स मेथड में द लेस्पियर्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द एक्सपेंडिचर, सॉल्व करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ लेस्पियर्स मेथड, इसका सुबह द लेस्पियर्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर एंड द करंट ईयर। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद आपने याद रखूंगा लेस्पेयर्स मेथड के बाद है पैशेज मेथड। तो लेस्पेयर्स मेथड की अगर हम फार्मूला बात करेंगे तो है प्राइस इंडेक्स के लिए P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है पैचेस मेथड। द पैचेस मेथड इज यूज्ड टू नो द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर विद द सेम बास्केट कॉस्ट इन 100 इन बेस ईयर। ये आपने याद रखना होगा। क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर आर यूज्ड एज वेट्स। फिशर्स मेथड, द फिशर्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका सुबह also called as ideal method price index। बहुत ही क्वेश्चन है। द फिशर्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका आइडियल मेथड प्राइस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिशर्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका आइडियल मेथड प्राइस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिशर्स मेथड इज आल्सो नोन एज, इसका आइडियल मेथड प्राइस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिशर्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका आइडियल मेथड प्राइस इंडेक्स। P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ L इंटू P। इसकी फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू P। ये आपने याद रखना होगा।
इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स मेथड एंड पैचेस मेथड, ठीक है ना। फिशर्स मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैचेस मेथड, बोथ बेस एंड करंट एयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। Consumer Price Index (CPI) stands for Consumer Price Index. The Consumer Price Index is also known as Real Price Index number. बहुत ही important question है। The Consumer Price Index बहुत ही important question है। The Consumer Price Index is also known as Real Price Index, Cost of Living Index, Price of Living Index और Retail Price Index। तो आपने याद उसमें The Consumer Price Index is also known as बहुत ही important question है। The Consumer Price Index is also known as real time। तो आपने याद उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज रियल प्राइस इंडेक्स। तो आपने द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज रियल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स। पहले आपने देखा द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज रियल प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। CPI, that is Consumer Price Index, is used to measure the price of basket of goods and service of a particular class or region at a particular point of time in comparison to base year। तो आपने याद रखना The Consumer Price Index is used to measure the price of basket of goods and service of a particular class or region at a particular point of time in comparison to base year। बहुत ही important fact आपने याद रखना। What is the use of Consumer Price Index? The Consumer Price Index is used to measure the price of basket of goods and services of a particular class or region at a particular point of time in comparison to base year। ये आपने याद रखूंगा। The Consumer Price Index number, तो आपने the Consumer Price Index is used. What is the use of Consumer Price Index? The Consumer Price Index is used to measure the price of basket of goods and service of a particular class or region at a particular point of time in comparison to base year। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखा। What is Consumer Price Index? इसका सवाल है The Consumer Price Index is used to measure the price of basket of goods and service of a particular class or region at a particular point of time in comparison to base year। तो आपने याद रखना व्हाट इज द यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका जवाब द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और रीजन एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। ये आपने याद रखूंगा। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एप्लीकेशंस ऑफ सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। The CPI is used to know the increase or decrease in the cost of living। तो आपने the consumer price index is used to know the increase or decrease in the cost of living। दूसरा है the consumer price index is used by government to make salary and DA daily allowance। तो आपने याद रखना the consumer price index is used by the government to make salary and DA, that is daily allowance। The Consumer Price Index is used to find purchasing power of money and real income। तो आपने देखा the Consumer Price Index number। तो आपने देखा the Consumer Price Index is used to find purchasing power of money and real income or wages। तो आपने याद रखूंगा पहले applications of Consumer Price Index। पहला क्या है the Consumer Price Index is used to know increase or decrease in cost of living। पहले आपने याद रखना applications of consumer price index। पहला क्या है the CPI, the consumer price index is used to know increase or decrease in the cost of living। तो आपने पहले याद रखूंगा consumer price index में पहला आपने याद रखना the consumer price index is used to know। तो आपने याद रखना पहले consumer price index में आपने याद रखूंगा consumer price index। The consumer price index is used to know increase or decrease in the cost of living। पहले आपने याद रखना इसमें the consumer price index is used to know increase or decrease in cost of living। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना the consumer price index। तो आपने याद रखना the consumer price index is used to know the increase or decrease in the cost of living। पहले आपने याद रखना the consumer price index। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना the consumer price index is used to know the increase or decrease in the cost of living। पहला एप्लीकेशन क्या है what is the तो आपने applications of CPI। the CPI is तो आपने the consumer price index CPI stands for consumer price index। applications of CPI the CPI is used to know the increase or decrease in the cost of living। दूसरा है the consumer price index is used by the government to make salary and daily allowance। तीसरा है the consumer price index is used to find the purchasing power of money and real income। purchasing power of money is equal to 1 divided by कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है ना, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आपने में परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स।
दूसरा क्या है, रियल वेजेस इज इक्वल टू मनी वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। नंबर फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ सीपीआई में, यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग प्राइस पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। तो आपने याद रखना है यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग प्राइस पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। तो आपने याद रखना है यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग प्राइस पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। तो आपने याद रखना द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग प्राइस पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहला क्या है, सीपीआई IW दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दूसरा उसके बाद है CPI फॉर AL दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। उसके बाद है CPI RL दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स। उसके बाद है CPI UNME दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ये आपने याद रखना होगा। प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहला क्या है, प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई, पहला क्या है, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा है डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा है चॉइस ऑफ बेस ईयर। नंबर फोर्थ है वो है डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने याद रखना होगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपने पहले याद रखा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई, पहला क्या है, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा है डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चॉइस ऑफ बेस ईयर। नंबर फोर्थ जो है वो है डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमें याद रखना होगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहला क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज वेट एग्रीगेट मेथड। क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स, that is CPI is equal to expenditure in current year divided by expenditure in base year into 100। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। एग्रीगेट में आपने याद रखना एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर into 100। फैमिली बजट मेथड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, होलसेल प्राइस इंडेक्स। द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंज इन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। तो आपने याद रखना द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपने याद रखना द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। तो आपने याद रखना द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। तो आपने याद रखना what is wholesale price index? It should be the wholesale price index measures the general changes in the wholesale price of goods in the country। तो आपने याद रखना होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपने याद रखा द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द करंट कंट्री। तो आपने याद रखा व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब है द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। तो आपने याद रखना होलसेल प्राइस इंडेक्स, द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। दूसरा है द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपने याद रखना पहले व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द जनरल चेंजेस इन होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। दूसरा है द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकंड है द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन राइज और फॉल इन प्राइस। तो आपने देखा द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन राइज और फॉल इन प्राइस एट होलसेल लेवल, सिपल्स ओवर द रिटेल लेवल आफ्टर लैग। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपने देखा द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ Commerce and Industry. The wholesale price index was first time published 10th January 1942. 10th January 1942. Seventh revision is with base year 2008 to 2012. Chaired by Dr. Sumitra Chandra. Education health not included. Tax are also not included. तो आपने याद इसमें सेवंथ रीजन में क्या है, एजुकेशन हेल्थ नॉट इंक्लूडेड, टैक्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, फूड इंडेक्स सेपरेटली रिप्रेजेंटेड। उसके बाद है WPI दैट इज वेटेड प्राइस इंडेक्स बास्केट, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड ये
ठीक है ना, ये आपने यूज ऑफ WPI, एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन, estimation of money value and real value, estimation of used for estimating GDP by CSO, used by business consultants, by global investors. ये आप छोड़ो। उसके बाद हम बात करेंगे अब डिफरेंस बिटवीन WPI, दैट इज वेटेड, तो आपने डिफरेंस बिटवीन वेटेड प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला क्या है, वेटेड प्राइस इंडेक्स इज released by Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. The Consumer Price Index is released by Ministry of Statistics and Program of Implementation. तो आपने याद रखना, पहले आपने याद रखना the WPI, the weighted, तो आपने रखना the WPI is released by Office of Economic Advisor. तो आपने याद रखना the WPI, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना, the WPI is released by Officer of Economic Advisor. तो आपने याद रखना पहले the WPI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the WPI is released by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, while as the CPI, that is Consumer Price Index, is released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. दूसरा है the WPI measures goods only, while as CPI measures both goods and services. उसके बाद क्या है, number of items in WPI, that is 697, number of items in CPI, that is 448, real basket, rural basket 460, urban basket. उसके बाद क्या है, base year 2000 to 2010, base year 2010. कैटेगरीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल, पावर, प्राइमरी आर्टिकल्स, इसमें क्या है, मैनी कैटेगरीज, फूड, बेवरेज, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग एक्स्ट्रा. टेस्ट ऑफ एडवोकेसी इंडेक्स नंबर, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट. पहले आपने याद रखा यूनिट टेस्ट, तो आपने टेस्ट फॉर एडवोकेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, पहला क्या है, यूनिट टेस्ट. इंडेक्स नंबर फार्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट, तो आपने याद रखा इसमें इंडेक्स नंबर फार्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इन विच प्राइस और क्वांटिटीज आर यूज्ड. satisfied by all index methods except simple unweighted aggregative method. दूसरा है time reversal test, that is interchanging of time scripts of price quantity gives the reciprocal of original formula. Not satisfied by less parent. उसके बाद है factor reversal method. If P and Q factors in price quantity index formula are interchanged so that the quantity price index is obtained, that the product of two individuals should give the 3 value ratio. Circular test, extension of TRT, that is index, that if the index for the year SAS Ardha is based on SAS Sada and the another index for, ये आप छोड़ो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डेमोग्राफी एंड सेंसस के बारे में.